مرد جو شادی کر کے لے آتے ہیں ان کی زندگیوں کو اس ایک ویزے کے لیے یہ عذاب بنا دیتی ہے۔ خبردار، تم نے اپنے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کیا اور ہمیں پتہ چلا تو ہم تمہاری بیٹی کو چائلڈ کیئر میں لے جائیں گے۔ اسے یہ کہتے کہ تم جلد از جلد اپنے خاوند سے طلاق لو۔ اب شروع کرتے ہیں اپنے اس حقیقی سٹوری کا جو واقعی لوگوں کے ساتھ، اکثر لوگوں کے ساتھ، خصوصاً مغربی ملکوں میں جو لوگ شادیاں کر کے باہر سے آتے ہیں اور اپنے بیویوں کو وہ ویسٹ میں لے آتے ہیں۔ یہاں میں خصوصاً بات کرتا ہوں برطانیہ کا، کیونکہ یہاں کی سٹوری مجھے معلوم ہے، جبکہ دوسرے مغربی ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ویزا کی خاطر یہ کچھ عورتیں، بلکہ آج کل بہت زیادہ تعداد میں یہ عورتیں کیا کر بیٹھ جاتی ہے، جو اپنی زندگیوں کو بھی وہ برباد کرتی ہے۔ ایک ویزا تو مل جاتا ہے لیکن زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے۔ بے گناہ مرد جو شادی کر کے لے آتے ہیں ان کی زندگیوں کو اس ایک ویزے کے لیے یہ عذاب بنا دیتی ہے۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جو کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، جو میں لوگوں کے ساتھ ان ویڈیوز کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پچھلے ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سوشل ورکرز نے تو آفی کو اس کالی کے ساتھ ڈال دیا تھا۔ پھر وسیم کے لیے انہوں نے ویڈیو لنک پہ ارینج کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو وہ دیکھ سکتا ہے 15 منٹ کے لیے ہفتے میں ایک بار۔ پھر اس کے بعد کانٹیکٹ سینٹر بھی ہوا، بات یہاں تک تھی۔ اب یہ وسیم جاتا ہے ہفتے میں 2 بار، وہ کیئرر کانٹیکٹ سینٹر میں اس کے بیٹی کو وہ لے آتی ہے اپنی گاڑی میں، تو یہ 1 گھنٹہ گزار دیتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، پھر واپس آ جاتا ہے اور کیس کورٹ میں چل رہا ہے۔ وہاں بھی ہیئرنگ ہو رہا ہے، لیکن ہیئرنگ میں دونوں کو وہ ایک ساتھ نہیں کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں ایک ساتھ کسی ہیئرنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی وسیم اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، یہ سب یہ دیکھ رہے تھے۔ ہاسپٹل میں 10 دن اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے بعد یہ جو ملتے رہتے تھے وہ اس کے پاس جاتی، وہ اس کو بلاتی، یہ جاتا۔ اب آفی کچھ 4-5 مہینے اس کالی کے ساتھ رہی۔ جب سوشل ورکر نے یہ ارینج کیا کہ کانٹیکٹ سینٹر میں، وہ کرائیڈن والا نہیں، یہ یہاں قریب والے میں، تو اس کی بیٹی کو ابھی وہ کرائیڈن سے نہیں لایا جایا کرتا تھا۔ اب آفی کو انہوں نے اسی لوکل ایریا میں بھی موو کیا تھا، ایک اور کیئرر کے پاس ڈالا تھا اس کو۔ وہ کیئرر اور تھی جو اس کے ساتھ تھی، اور ایک اور کیئرر تھی جو وہ بچی کو وسیم کے لیے وہ لایا کرتی تھی کانٹیکٹ سینٹر میں۔ تو یہ سلسلہ پھر اس طرح تھا۔ الغرض وسیم آفی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے بہت مہینوں سے 4-5 مہینے یا 6 مہینے جب سے انہوں نے غائب کیا تھا، اس نے نہ دیکھا تھا، نہ بات کی تھی، نہ کوئی ٹیکسٹ میسج، نہ اس کی آواز سنی تھی، کچھ بھی نہیں، کیونکہ آفی کو انہوں نے کافی ڈرایا دھمکایا تھا۔ اب دھمکی کس بات کی؟ کون سی دھمکی وہ دے سکتے ہیں؟ ایک دھمکی، اگر خبردار تم نے اپنے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کیا اور ہمیں پتہ چلا تو ہم تمہاری بیٹی کو چائلڈ کیئر میں لے جائیں گے، تم سے لے لیں گے۔ یہ تھریٹ تھا، اس وجہ سے اس کو ڈرایا تھا۔ اور ساتھ میں تو جب آفی ان کے کنٹرول میں پوری طرح سے رہی، جب یہ دوبارہ انہوں نے غائب کیا تھا، تو اس دوران وہ
सोशल वर्कर और उसका सॉलिसिटर, आफी का जो सॉलिसिटर था, ये दोनों मिलकर आफी को काफ़ी थ्रेट करते थे, उसको डराते धमकाते थे। साथ में सोशल वर्कर, बल्कि ये दोनों उसे ये कहते कि तुम जल्द से जल्द अपने खावन से तलाक लो, उससे डिवोर्स लो। You have to get the divorce from your husband as soon as possible. I am already separated from him. Then why I need to get the divorce from him? तो आफी कहती थी कि मैं उससे सेपरेट तो वैसे ही हूँ, उसके साथ थोड़ा ही हूँ, न वो मुझसे मिल सकता है, ना मैं उससे मिल सकता हूँ। हमने तो महीनों से किसी दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी है, तो तलाक से क्या फ़ायदा होगा? अब तुम लोग मुझे क्यों इस पर फोर्स कर रहे हो कि मैं खामखा उससे तलाक लूँ? अब ये तलाक करवाना क्या लोकल अथॉरिटी का काम है? क्या ये सोशल वर्कर का काम है? क्या वो ऐसे करते हैं फैमिलियों के साथ? आप बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। I have completed the divorce application for you, and you have to sign it, and I will submit it in the court for your divorce. अब जब ये इन्वॉल्व हो जाए, ये काफ़ी डीप चले जाते हैं, हर चीज़ में ये टांग अड़ाते हैं। पहले तो उसको हॉस्पिटल से अलहदा कर दिया। This is my husband, and I am going with him home, so no one can stop me. You will definitely go with me and not with your husband. अब उसको डिवोर्स पे मजबूर कर रहे हैं, डिवोर्स करो नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे चाइल्ड केयर में। ये थ्रेट था। और ये सिर्फ नहीं, अपने हस्बैंड के खिलाफ और भी एलिगेशन लगाओ। वो क्यों? और एलिगेशन जब लगेंगे तो लोकल अथॉरिटी का जो केस है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में वसीम के खिलाफ, वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। उनके पास और भी ऐसे मटेरियल आ जाएंगे, ऐसे एविडेंस आ जाएंगे कि वो कोर्ट में पेश कर सकेंगे कि ये देखो, ये आदमी तो है ही वायलेंट। तो ये पहले वाले एलिगेशंस जो ये कहता है कि ये झूठे थे, वो भी सही थे। अगर ये अभी वायलेंट है तो उस वक्त भी था। तो आफी ने शुरू से जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। इस तरह से वो कोर्ट को भी ट्रिक करते थे अपने इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर। कुछ तो खुद से झूठ गढ़ते थे बैठकर, कुछ आफी को मजबूर करते थे कि वो जाकर और भी फॉल्स एलिगेशन इस पे लगाए, जैसे कि ब्लैक सिस्टर ने किया था जिस पर वसीम दोबारा अरेस्ट हुआ था। अभी सोशल वर्कर उसको पुश कर रहा है कि जाओ और एलिगेशन लगाओ, और उसका सॉलिसिटर भी। ये दोनों मिलकर उसको वरगलाते हैं, तुम करोगे। तो चुनांचे एक रोज़ क्या हुआ, वसीम घर पर है, अचानक दरवाज़ा किसी ने खटकाया। जब ये दरवाजे पे गया, अकेला था घर में, दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि 3 आदमी खड़े हैं सिविल कपड़ों में। तो उन्होंने या फिर उनमें से एक ने एकदम से आईडी दिखाई और पुलिस वाला बैज दिखाया कि हम तीनों पुलिस वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो वसीम ने पूछा, अच्छा किस लिए आए हैं? उन्होंने वसीम से कहा कि तुम्हारी बीवी ने तुम पर एक और एलिगेशन भी लगाया है। अब वो जो वो तीनों थे, एक के हाथ में एक फाइल भी था छोटा सा, तो उसमें कुछ पेपर पड़े हुए थे। तो उस ऑफिसर ने खोला कि ये जो लिखा हुआ है वो ये है। वो क्या था? थ्रेट टू किल। तुमने उसको थ्रेट भेजा है कि तुम उसको जान से मार दोगे। ये उसका एलिगेशन है तुम्हारी बीवी का। तो हम तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, हम तुमसे खाली इंटरव्यू करेंगे, तुमसे पूछेंगे कि इसके बारे में क्या तुम बताओगे। वसीम ने कहा कि पूछो। कहते नहीं, यहाँ नहीं, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ इंटरव्यू रूम में हम ये सवाल करेंगे आपसे।
वसीम ने कहा तो इसकी क्या ज़रूरत है, आपके पास है, आपने ये दिखाओ पूरी तरह से। वो पूरा नहीं दिखा रहा था, थोड़ा ऐसा करके दिखाया, बंद किया। कहते ये बाकी बात पुलिस स्टेशन में होगी, तुम हमारे साथ आओगे और बेफिक्र रहना, हम तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ भी नहीं करेंगे, हमने तुमसे खाली इंटरव्यू लेना है, फिर उसके बाद अपने घर आ जाना। तो इस तरह से उन्होंने वसीम का ज़हन बनाया। वसीम ने कहा ठीक है, अगर एक इंटरव्यू की बात है या आप मेरे से नहीं ले रहे हैं दरवाजे पर, या मैं आपको दावत भी देता हूँ, आप आ जाए अंदर। वो उससे बुलाया भी, ये अंदर भी आ गए, इधर उधर देख रहे थे और हर चीज़ पे सवाल करे, ये क्या है वो क्या है। तो वसीम ने कहा अभी आप घर के अंदर बैठ जाओ, यहाँ बात करो मेरे साथ, जो है ये भी दिखाओ, और ना दिखाना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी, पूछो जो पूछना है, मैं जवाब दे देता हूँ, बस आप लिख लेना, रिकॉर्ड करना है, आप ये आपका बॉडी कैम चल रहा है, इसमें रिकॉर्ड तो होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पुलिस स्टेशन जाना होगा। बहरहाल इसको मजबूर किया, ये साथ चल पड़ा, और वो सिविल कपड़ों में। आगे जाकर एक प्राइवेट कार खड़ी थी, वो भी पुलिस की गाड़ी नहीं थी, आम कार थी। तो उसमें वसीम को बिठाया। अब इस तरह से बिठाया कि उसको पिछली सीट पे दरमियान में बिठाया, एक पुलिस वाला एक साइड पे बैठा, दूसरा उसके दूसरे साइड पे बैठा, और वो जो तीसरा था वो चला रहा था। तो उसी पुलिस स्टेशन में जिसमें ये 2 बार पहले अरेस्ट हुआ था, लॉकअप हुआ था, यानी डिटेन हुआ था, उसी में इसको ले गए, क्योंकि इसके इलाके के साथ वही लगता था। अब जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर उसको इन्होंने दाखिल किया, तो सीधा वहाँ जो सार्जेंट बैठे हुए, सार्जेंट के पास ले गया। अब वो सार्जेंट इसको बुक कर रहा है सेल में डालने के लिए, यानी अरेस्ट हो गया। ये हैरान हो गया, इसने तो मुझे कहा था कि हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और आपसे इंटरव्यू लें, ये तो मुझे इधर बुक कर रहे हैं और सेल में डाल रहे हैं। तो इसने एकदम उससे पूछा, वो साथ खड़ा है जो उसको लेकर गया था, कि भाई जवाब दो, आपने कहा आप इंटरव्यू करेंगे, ये तो मुझे आप सेल में डाल रहे हैं, इसको ये बुक करवा रहे हैं, ये क्यों? वो इसको न देखता है न जवाब देता है, देखता भी नहीं है, जवाब भी नहीं देता। फिर इसने उस सार्जेंट से पूछा जो बुक कर रहा था, तो ये उसको कहा ये क्या है, ये इसका मतलब इसने, इन तीनों ने मेरे साथ झूठ बोला, पुलिस ऑफिसर होकर इन्होंने झूठ बोला। आप पब्लिक से कहते हैं कि पुलिस को झूठ मत बोलो, तो ये खुद साफ झूठ नहीं, वो इसीलिए सिविल कपड़ों में आया था कि मुझे वो किसी तरह ले जा सके, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म में आते तो उनका इस तरह से अरेस्ट करने का पर कोई जवाब बनता नहीं था, क्योंकि आफी तो थी नहीं यहाँ पर कि वो बुलाती। वो पहली मर्तबा जब पुलिस आई, उसको घर से अरेस्ट किया, वो तो आफी ने बुलाया था। दूसरी मर्तबा जो अरेस्ट किया था वो भी ये घर नहीं आए, इसको ईमेल किया कि पुलिस स्टेशन आओ, वहाँ अरेस्ट किया। जबकि वो ब्लैक सिस्टर ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, फॉल्स एलिगेशन लगाया था आफी को साथ लेकर। तो उस वक्त भी इसके पास नहीं आए थे अरेस्ट करने के लिए, सिर्फ एक बार आए थे, पहली बार। अब दूसरी बार वो अगर आते, यानी पुलिस गाड़ी लेकर आते, यूनिफॉर्म में आते, तो वो कौन सा जवाब पेश करते, इस पर तो वो अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो उसको इस तरह से अपने टेक्टिक से ये पुलिस ने उल्लू बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ उसको सेल में डाल दिया। जब उस सार्जेंट से पूछा कि ये इसने झूठ क्यों बोला, आप जवाब दो, ये तो नहीं दे रहा, तो उसने भी ऐसी बात टाल दी। उसको कहा कि ले जाओ इसके पीछे। फिर इसको बेगुनाह लॉक कर दिया तीसरी बार। अब ये तीसरा अरेस्ट, फिर 24 आवर सेल में रखा। फिर उसके बाद इसको इंटरव्यू रूम में तीसरी बार अभी ला रहा है। एक औरत पहली बार वो पुलिस को बुलाती है, वो
फॉल्स एलिगेशन लगाती है, झूठे इल्ज़ामात अपने खावन पे लगाती है। पुलिस को, उसका खावन पुलिस को वो सारा प्रूफ दिखाने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि मेरे को अरेस्ट करने से पहले ये देख लो, इसने जो बोला है सारा झूठ है। इसने यही बोला है कि इसने मुझे घर में कैद करके रखा है पूरा महीना या ये 5-6 हफ्ते। तो ये है, देखो सारे पिक्चर्स ये है, मैं इसको हर रोज़ घुमाता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस ने देखने से इनकार किया। वो भी सार्जेंट था, सार्जेंट ने इनकार कर दिया। जो घर आया था पहली मरतबा दूसरे पुलिस वालों के साथ, वो भी सार्जेंट था। तो उसने ये सार्जेंट को कह रहा था कि ये देख लो, उसने इनकार कर दिया, तो उसको अरेस्ट किया। दूसरी मरतबा ब्लैक सिस्टर्स ने उस पर एलिगेशन लगाए, फिर भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। One of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. तीसरी मरतबा इसकी बीवी ने ये चाल चली थी, क्योंकि उसको सोशल वर्कर ने और उसके सदस्य ने थ्रेट किया था कि तुम ये करोगी। तरीका भी उन्होंने इसको बताया था कि किस तरह से ये करो। अब तुम वहाँ तो नहीं हो कि कॉल करो पुलिस को बुलाओ, अभी तुम्हें ये तरीका करना। तरीका अभी वो बताते हैं और ये करती है, और ये ना करे तो तुम्हारी बेटी गई चाइल्ड केयर में, ये करती थी। अब तीसरी मर्तबा वसीम अरेस्ट हो गया, फिर 24 आवर सेल में रहा, फिर उसका इंटरव्यू हुआ, फिर ये बेल के ऊपर छूट गया तीसरी बार भी। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी। इससे पहले भी सारी, आप पिछले भी सारे वीडियो देख सकते हैं। ये 7वां किस्त है, तो अब शुरू से देखें, जिन हजरात ने नहीं देखा है तो पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्या कुछ एक मजलूम इंसान के साथ, बेगुनाह इंसान के साथ हो रहा है, जो उसने कभी कोई क्राइम किया नहीं। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, ये पुलिस जानती है। पहले इसके ऊपर कोई क्राइम नहीं। हालांकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पुलिस उस शख्स को किसी और के इल्ज़ाम पर, एलिगेशन पे इस तरह से नहीं अरेस्ट कर सकती है अगर वो क्राइम का प्रूफ वहाँ ना हो। अगर उस शख्स का पहले बिल्कुल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस नेशनल कंप्यूटर में नहीं है, जबकि इसका नहीं था, सारी ज़िंदगी से रह रहा है, इसका रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, अगर किसी ने बार बार पहले क्राइम किए होते हो, उसका पुलिस नेशनल कंप्यूटर में उसका क्राइम्स के काफ़ी रिकॉर्ड हो, फिर कोई और कॉल करे, उसके ख़िलाफ़ पुलिस को बुलाए और कहे कि इसने मेरे साथ ये किया है, तो पुलिस फिर अरेस्ट करे, तो उस वक्त पुलिस ये सोच सकती है कि ये है ही क्रिमिनल, ये तो पहले का क्राइम करता रहा है, कोई इसका जवाब बन सकता है। अब इसका तो कोई क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं है पहले से, फिर भी इसको एक औरत के झूठे इल्ज़ाम पर तीसरी बार इन्होंने अरेस्ट किया। आगे क्या हुआ उसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप तक और वीडियोस भी पहुंच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं उस्मान खान हूँ। मैं सच्ची कहानियों पर मबनी वीडियोस बना रहा हूँ जो ज़िंदगी में वाकई हो रही हैं। माई कॉन्टेंट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप इस किस्म की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियों में जर्बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें मेरे YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं, क्यूसिस तारीखी कहानियाँ एंड हिस्ट्री पैनल इन इंग्लिश।